Greetings to all my students. Today in this video you are going to watch the detailed and pointwise summary of poem 1. The name of the poem is My Mother at 66, composed by Kamla Das. Look at pointwise summary. Driving from her parents' house in Cochin the previous Friday morning, the poet saw her mother beside her doze off with an open mouth. Here, the poet is coming from her parents' house and she is going to Cochin airport on Friday morning. Then her mother was sitting beside her and she was dozing. She was taking a short sleep. Essentially, when we take the sleep in the daytime, that is called doze. So she was taking the short sleep with an open mouth. Then poet saw her mother. Then what did she find there? She felt like her mother's grey face resembled a dead body. Then she found there that her mother's face was in grey color. It got faded because of her old age and it is resembling to a dead body. She wanted to put that thought away and looked outside the car window. And here the poet wanted to draw her attention from her face. Then she looked out of the car window. Then she found there that young trees appeared to be running in the opposite direction. She found there that the young trees were running to the opposite direction. When we travel, we usually observe this thing. And happy children were spilling out of their homes. And the happy children, the children who were full of merriment, they were coming out of their homes. They were running out. At the airport security check, she looked at her mother face again, standing at a distance, and she thought she resembled a pale winter's moon. Again she looked at her mother face and she found there that her face is resembling like a pale winter's moon. In the winter, the moon does not appear clear. In the same way, her mother face is also resembling like a winter's moon. She felt her childhood's fear of separation. So when the poet was a child, then she had a fear of separation of her mother, and that fear of separation again aroused in her heart, but all she said was, "See you soon, Amma." And she bade her mother, and she could do was smile and smile and smile, and by smiling she concealed her emotion at last. This was all about the pointwise summary. Now, detailed summary. Aging is an important phase of human life. Aging, that means growing old. That's an important phase. ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक phase होता है, एक अवस्था होती है of human life की. In this poem, the poet relates a personal experience. इस poem में जो poet है वो अपने personal experience को share करती हैं. She brings out a common paradox of human relationships and portrays a sensational separation of a mother and a daughter. इस poem में जो human का common paradox है, जो human की एक personal जो thinking है about the relationship, she had shown in the poem and she had portrays, और यहाँ पे उन्होंने describe किया sensational separation of a mother and a daughter, कि किस तरह से कि emotional separation होता है of a mother, एक मदर का एक डॉटर के साथ में कैसे वो सेपरेट होते हैं. इट हैज़ बीन एक्सप्रेस्ड इन दिस पोएम. वन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग द पोएटेस वॉज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू द कोचिन एयरपोर्ट. एक सुबह जो है फ्राइडे की सुबह होती है जब पोएटेस जो हैं अपने पेरेंट्स के होम से वो जो है कोचिन एयरपोर्ट जाती रहती हैं. हर मदर वॉज सिटिंग बिसाइड हर इन द कार. उनकी माँ जो है उनके पास बगल में बैठी हुई हैं. सी सडनली हैड अ लुक एट हर मदर. अचानक वो अपने माँ को देखती है. सी फाउंड दैट हर मदर वॉज डोजिंग विथ हर ओपन माउथ. और यहाँ पे पोएट पाती हैं कि जो उनकी मदर है
She is sleeping with her open mouth. Her face was as pale as that of a corpse, and she has resembled her face with a dead body. और वो इस तरह से कलरलेस था, इस तरह से फेड हुआ था जैसे कि एक डेड बॉडी, जैसे कि कॉप्स. The poet painfully realized that her mother is not going to live long, and she immediately realized it that her mother is not going to live long, कि बहुत दिन तक जिंदा रहने वाली नहीं है. This painful thought haunted her, और ये जो एक असहनीय जो एक विचार उनके मन में आया बहुत उनको दुखी करता है. But soon she tried to put it off by looking out of the car window. लेकिन जल्द ही वो अपना इस चीज़ से अटेंशन को ड्रॉ करना चाहती हैं, अपने अटेंशन को ड्रॉ करना चाहती हैं. एंड सी वांटेड टू लुक आउट ऑफ द कार विंडो. सी सॉ द यंग ट्रीज रनिंग पास्ट देम, और वहाँ वो पाती हैं जैसे कि यूजुअली ट्रैवलिंग के टाइम पे हम देखते हैं कि ट्रीज़ जो है वो पीछे की तरफ भागते हुए दिखाई देते हैं. तो सी फाउंड दैट इमेज देयर, द ट्रीज वर रनिंग बिहाइंड, वो पीछे की तरफ भाग रहे थे. सी लुक्ड एट द मेरी चिल्ड्रन कमिंग आउट ऑफ देयर होम्स, एंड द यंग चिल्ड्रन दे वर फुल ऑफ मेरीमेंट, बहुत ही खुश थे. दे वर फुल ऑफ जॉय, बहुत ही खुश थे वो. एंड दे वर स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम, अपने घर से वो बाहर निकल रहे थे. दे वर रनिंग आउट. एज सी सॉ लाइफ एंड वाइटैलिटी इन द आउटसाइड वर्ल्ड, द पेनफुल थॉट पास्ड अवे फ्रॉम हर माइंड. विटैलिटी दैट मीन्स अ हेल्दी कैपेसिटी फॉर विगोरस एक्टिविटी. जैसे कि उन्होंने देखा कि लाइफ की जो एक एनर्जेटिक जो बाहर का वर्ल्ड है, जो आउटसाइड वर्ल्ड है, वो कितना एनर्जेटिक और कितना ज़्यादा यंग है. और यहाँ पर क्या है कि वृद्धावस्था में क्या है, वृद्धावस्था में पेन है, और वहाँ पे क्या है कि बिल्कुल स्टिलनेस है, बिल्कुल एक ठहराव है और दर्द है. तो वृद्धावस्था में क्या है, ये सारी चीज़ें हैं. और जबकि यंग जो होते हैं, जो युवावस्था होती है, वो क्या है, दैट इज़ फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ मेरीमेंट, वो वैसी अवस्था होती है. तो बाहर का जो एटमॉस्फेयर है कार के बाहर का, वो क्या है, फुल ऑफ मेरीमेंट है, फुल ऑफ इन्जॉयमेंट है. और यहाँ पे जो वृद्धावस्था जहाँ पर वो अपने माँ के बगल में बैठी हुई है, वो क्या है, दैट इज़ वेरी पेनफुल. सो दिस वे सी जस्ट ड्रू हर अटेंशन फ्रॉम देयर. इस तरह से वो अपने अटेंशन को ड्रॉ करती हैं. आफ्टर रीचिंग द एयरपोर्ट, जब एयरपोर्ट पहुँचती हैं, सी वेंट थ्रू द सिक्योरिटी चेक. तो वहाँ पे सिक्योरिटी चेक होता है. सिक्योरिटी चेक दैट मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम डेंजर. वहाँ पे एक डेंजर से फ्री होने के लिए एक चेक होता है. तो सिक्योरिटी चेक होने के बाद हर मदर वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड अ फ्यू यार्ड अवे. उनकी माँ जो है उनसे कुछ दूर खड़ी हुई थी. आफ्टर द सिक्योरिटी चेक, इस सिक्योरिटी चेक के बाद सी लुक्ड एट हर मदर अगेन. फिर से जो है पोएटेस अपने माँ को देखती हैं. हर फेस वॉज पेल वाइट लाइक अ लेट विंटर्स मून. उनका फेस फिर से जो है पेल, फिर से फेड और जो है कलरलेस दिखाई दे रहा है जैसे कि एक विंटर्स मून. सी फेल्ट द ओल्ड फैमिलियर एक्ट ऑफ चाइल्डहुड इन हर हार्ट, विच इज़ यूजुअली फेल्ट बाई अ चाइल्ड ड्यू टू द फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हिज और हर मदर. उनको बचपन की तरह से, जैसे कि क्या होता है, हर बच्चे को डर होता है अपने माता पिता को खोने का. तो एक बचपन का जो डर था कि कहीं उनकी माँ उनसे बिछड़ ना जाए, कहीं खो ना जाए, तो एक डर उनको था. वही डर फिर से उनके अंदर आ जाता है. मतलब जैसे बचपन में कोई बच्चा फील करता है माँ के अलग होने का या पेरेंट्स का दूर जाने का, उसे डर सताता रहता है. तो वैसे ही बच्चों जैसी फीलिंग जो है उनके अंदर आती है और वो काफ़ी ज़्यादा फिर से दुखी हो जाती हैं. बट सी कंटेन्ड हर सेल्फ एंड केप्ट ऑन स्माइलिंग इन ऑर्डर टू कंसील हर इमोशंस. क्योंकि अब वो बेड कर रही हैं, शी इज़ डिपार्टिंग फ्रॉम हर मदर, अपने माँ से अलग हो रही हैं. तो उनको अपने आप को कंटेंट करना था, अपने आप को संतुष्ट दिखाना था और एक स्माइल देनी थी, टू हाइड हर इमोशन, अपने इमोशन को छुपाने के लिए. सी स्पोक नो वर्ड टू हर मदर. अपने माँ से उन्होंने कोई और शब्द नहीं बोला. ऑल दैट सी सेड वॉज, और सिर्फ उन्होंने इतना ही कहा कि सी यू सून अम्मा, एंड बेड गुड बाय टू हर मदर विद द होप टू सी हर अगेन. और उन्होंने जो है एक स्माइल के साथ उनको बेड किया, गुड बाय कहा अपनी मदर को, विद द होप टू सी हर अगेन, एक आशा के साथ में कि वो फिर से अपनी माँ से मिलेंगी. दिस वॉज ऑल अबाउट द डिटेल्ड समरी. लेट्स सी द पोएटिक डिवाइसेज ऑफ दिस पोएम. फॉलोइंग पोएटिक डिवाइसेज हैव बीन यूज्ड इन द पोएम. ये जो पोएम नीचे जो है पोएटिक डिवाइसेज यहाँ पे बताई गई हैं, दैट इज़ यूज्ड इन द पोएम. माई मदर एट 66. द फर्स्ट figure of speech is used here, simile. It is the comparison of two things by using as or like. यहाँ पर दो चीज़ों को कंपेयर किया जाता है by using the preposition as or like. एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, her face ashen like that of a corpse as a late winter's moon. ये दो यहाँ पर लाइन दी गई हैं पोएम की. तो यहाँ पे her face ashen like that of a corpse, तो फेस को कंपेयर किया गया है कॉप्स से. एंड द वर्ड विच हैज़ बीन यूज्ड हियर दैट इज़ लाइक.
तो दो अलग अलग चीज़ों को कंपेयर किया गया है वर्ड लाइक का यूज़ करते हुए. सो हियर इज़ अ डिवाइस सिमली. एज अ लेट विंटर्स मून, अगेन फेस को कंपेयर किया जा रहा है विद द लेट विंटर्स मून. विंटर्स मून से कंपेयर किया जा रहा है, जैसे कि विंटर का मून जो है वो धुंध में, फॉग में बिल्कुल क्लियर नहीं होता है, मिस्टी होता है. तो उसी तरह से जो है वो फेस भी उनका बिल्कुल मिस्टी जैसा दिखाई दे रहा है, वो एकदम बिल्कुल क्लियर नहीं है, उसमें शाइनिंग नहीं है. तो इस तरह से जो है उनके फेस को विंटर्स मून से कंपेयर किया गया है. एंड हियर वी आर फाइंडिंग द डिवाइस ऑफ सिमली. मेटाफर, इट इज़ द डायरेक्ट कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स विदाउट द यूज ऑफ एज और लाइक. यहाँ पे डायरेक्ट जो है कंपैरिजन किया जाता है बिना एज और लाइक के यूज़ किए हुए. द मेरी चिल्ड्रेन स्पिलिंग, तो यहाँ पे क्या है कि स्पिलिंग का सेंस क्या होता है कि जैसे रनिंग वाटर में आप देखते हैं कि बुलबुले उठते हैं, बुलबुले उभर के आते हैं और एक जो है उसमें काफ़ी एनर्जी होती है. जब बुलबुला जो है पानी का जो एक जो उसमें से जो वाटर ड्रॉपलेट्स उसमें से निकलती हैं बाहर, तो एक उसमें उछाल होता है और फिर वो जा कर के गायब हो जाता है. तो बच्चे घर से एक बच्चे घर से ऐसे ऐसे निकल रहे हैं फुदकते हुए कि जैसे कि वो पानी का जो है जो बुलबुला है जो ऊपर आके उठता है और इस तरह से गायब हो जाता है, तो उसी तरह से बच्चे निकल रहे हैं. तो यहाँ पे जो मेरी चिल्ड्रेन हैं, जो खुशी मतलब जो बच्चों की खुशी है वो पानी के बुलबुले की तरह से उछल उछल के जो है बाहर आ रही है. एंड दे आर रनिंग आउट. तो इसको जो है इस लाइन में जो है दो चीज़ों को कंपेयर किया गया है. देयरफॉर हियर इज अ डिवाइस ऑफ मेटाफर. Personification, when we give a human characteristic to animals or plants or non-living things, that is called personification. जब हम किसी ह्यूमन क्वालिटी को किसी एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं या प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं या किसी और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं तो वो कहलाती हैं personification. जैसे कि इस लाइन में ट्रीज स्प्रिंटिंग, तो ट्रीज स्प्रिंटिंग, ट्रीज आर रनिंग आउट, दे मीन्स दे आर रनिंग सो दे हैव द मोशन. जैसे कि गाड़ी आगे चल रही है तो पेड़ जो है पीछे की तरफ भाग रहे हैं, तो एक मोशन को शो कर रहे हैं. तो भागना जो है वो एक ह्यूमन क्वालिटी होती है, इसीलिए जो है यहाँ पर मानवीयकरण अलंकार का यूज हुआ है, दैट इज पर्सोनिफिकेशन. एनाफोरा, इट इज़ द रिपीटिशन ऑफ अ वर्ड और फ्रेज टू क्रिएट अ पोएटिक इफेक्ट इन अ पोएम, दैट इज कॉल्ड एनाफोरा. द पोएट रिपीट्स दीज वर्ड्स स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल. तो यहाँ पे क्या कर रही हैं कि वो एक वर्ड को रिपीट कर रही हैं टू क्रिएट अ पोएटिक इफेक्ट. सो हियर इज अ डिवाइस ऑफ एनाफोरा. Last but not the least, alliteration. It is the repetition of the consonant sound in a line of poem. My mother, M sound is being repeated here. That though, TS sound is being repeated here. I said was, see you soon. So S sound is being repeated here. So here is a device of alliteration. This was all about the poetic device we had discussed here. Thank you for watching this video. I hope you have understood all these things. See you in the next video.